Hello students, in this video we are going to cover revisiting rational numbers and their decimal expansion. This is last topic of NCERT Mathematics class 10th chapter 1 real numbers, right? Now, what we are going to do in this chapter, revisiting rational numbers and their decimal expansions, means कि हम रैशनल नंबर्स और उनकी डेसिमल एक्सपेंशंस को फिर से रिविजिट करने जा रहे हैं. हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है इन आवर प्रीवियस क्लासेस. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट? बट बिफोर डूइंग दिस, इफ यू रिमेंबर, रैशनल नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स, राइट? रियल नंबर्स broadly categorized as rationals and irrationals, and we know that the decimal expansion, any number that can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called a rational number. The number which cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0, is called irrational number. Now, we also know that what type of decimal expansion a rational number have. The decimal expansion of rational numbers are either terminating or non-terminating, repeating or recurring. And the decimal expansions of irrational numbers are non-terminating and non-repeating. Right? Now what we are going to learn about, rational numbers and their decimal expansions, and we will learn some more properties related to them. कि अगर हम किसी रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं, तो वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग होती हैं. कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एक रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करती हैं, और हमें कैसे उसको देख के पता चल जाता है कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. दिस ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस टॉपिक, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. Okay, here you can see I took some examples from NCERT only. यहाँ पे कुछ numbers हमने लिए हैं. All these numbers are terminating decimal expansions. ये देखिए, ये terminate हो रहा है क्योंकि इसके आगे and so on का कोई symbol नहीं है, और यहाँ पे कुछ repeat भी नहीं हो रहा है. 0.375, 0.104, 23.3408, 0.0875. एक एक करके start करते हैं. Try to convert them into the form of p upon q. How we can write this? This can be written as 375 upon 1000. Can we write it further as 375 upon 10 raised to power 3? Now do prime factorization of this 375. How we can, ये मैं रब कर देती हूँ, हम बाद में लिख लेते हैं. 375 की prime factorization करते हैं. This 375 is मल्टीपल ऑफ 5. 3 का है, ये देख लें एक बार चेक करके. यस, ये 3 से भी डिविजिबल है बिकॉज तीनों का सम 3 से डिवाइड हो रहा है. तो हम इसको 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 1 लेफ्ट, 3 5 15. नाउ दिस इज 5 + 1 6 7 8. अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इट विल गो विद 5. 5 25 दिस इज 5 5. So how we can write its prime factorization can be written as 3 multiplied by 5 raised to power 3 divided by 10 raised to power 3. And 10 is not a prime number, तो हम इसकी भी prime factorization कर लेते हैं. It can be written as 2 raised to power 3 multiplied by 5 raised to power 3. Here you can see 5 raised to power 3 is common, so cancel them both. You will get 3 upon 2 raised to power 3. Now let's do this one.
it can be written as 104 upon 1000. Further, it can be written as 104 upon 10 raised to power 3. Now do prime factorization of 104. It will be 2 5s are 10, 2 2s are 4. This is 2 2s are 4, 1 5, 2 6 are 12, 2 13s are, this is 13 1s are. So how we can write this? This can be written as 2 raised to power 3 multiplied by 13 divided by 2 raised to power 3 into 5 raised to power 3, right? 5 raised to power 3, right? Now let's do this third part. Here we have 2 3 3 4 0 8. How many digits we have after decimal? 4. 1 2 3 and 4 zeros will be there. This is 2 3 3 4 0 8 divided by 10 raised to power 4. Now let's do its prime factorization. थोड़ा बड़ा नंबर है, यहाँ पे कर लेते हैं. This is 2 3 3 4 0 8. Do its prime factorization. This is an even number, quite obvious, divisible by 2. 2 1s are 2. This is 2 1s are 2. 1 left, 2 6s are 12. 1 left, 2 7s are 14. 0 with go with 0. 2 4s are 8. Again even number. This is 2 5s are 10. This is 6. 2 3s are 6. 2 5s are 10. 1 left. 2 8s are 16. Right. This is 2 3s are 6. 1 7. 2 5s are 10. 2 2s are 4. Again divisible by 2. This is 2 2s are 4. 1 left. 2 9s are 18. 2 1s are 2. 1 left. 2 7s are 14. 1 left. 2 6s are 12. This will go with 2 1s are 2. 2 4s are 8. 1 left, 2 5s are 10. 1 left, 2 8s are 16. 1 left, 2 8s are 16. 1 4 5 8 8. Again it will go with 2. 2 7s are 14. 2 2s are 4. 1 left, 2 9s are 18. 2 4s are 8. 2 3s are 6. 1 left, 2 6s are 12. 2 4s are 8. 2 7s are 14. This is 2 1s are 2. 2 3s are 2 6s are 12. 2 6s are 12. Then we have 2 6 are नहीं, this is 2 1s are 2. 1 बचा ना यहाँ पे, तो ये भी जाएगा हमारे पास 2 7s are 14. 2 8s are 16. पूरा ही जाएगा ये तो. 2 2s are 4. It will not go with 2. सॉरी यहाँ पे गलत कर रही हूँ, ये तो 2 से जाएगा ही नहीं. दिस इज एन ऑड नंबर. अब नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते हैं किसके साथ डिविजिबल होता है. इज इट डिविजिबल बाय 3? 6 + 4 10. 7 + 3 10. 10 10 20. तो ये तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता है. 5 से तो वैसे नहीं होगा बिकॉज लास्ट डिजिट इज नॉट 0 नीदर 5. तो देन इट कैन गो विथ 7. तो 7 से एक बार डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं कि 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. दिस इज 364. इसका डबल कर दो. 7 2s are 14. 0 6 - 1 5 3. तो 7 5s are, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा. 7 5s are 35. 1 left. 7 2s are 14. Then 7 1s are 7. Now 5 21 is, it will go with 7. This is 2 50. ये तो 7 से डिवाइड नहीं होगा. अब बेटा इसको कैसे चेक करेंगे कि ये एक प्राइम नंबर तो नहीं है. हाउ वी कैन चेक दिस वन नंबर? फर्स्टली यू हैव टू चेक एनी perfect square number, just nearest, you can say nearest to 521, any perfect square number, that is 625 or 25 625. और उससे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है. इसकी जो नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है दैट इज 22. 22s are 484. राइट. अब इस
अगले वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप उसके साथ चेक करके देखो कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। जैसे 7 तक तो ये नहीं होता था, अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 7 के बाद आता है 11। 11 से चेक करके देखो ये 11 से डिविजिबल है। 11 4 ज़ा 44, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 13 से चेक करके देखो, 13 से भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स आप इसके बाद सारे प्राइम नंबर 17 से चेक करके देखो, 19 से चेक करके देखो, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स दिस वन नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो हाउ वी कैन राइट इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 2 raised to power 6 multiply by 7 multiply by 521, and this 10 can be written as 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4, right? अब देखिए, डू वी हैव एनी कॉमन फैक्टर है? दिस वी कैन कैंसल आउट, वी विल गेट 13 अपॉन 5 raised to power 3. Now here you can see, here we have 2 raised to power 6 and here we are having 2 raised to power 4. By laws of exponents जब आप इसको कैंसिल करोगे तो you will get 2 raised to power 2. This is 2 raised to power 2 into 7 into 521 divided by 5 raised to power 4. अब आप इन सारे क्वेश्चंस को चेक करो ध्यान से। इसमें जब हमने एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लिया था, फिर हमने उसको p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट किया, वेयर p एंड q बोथ आर को प्राइम नंबर्स, मीन्स इसमें से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए। अब को प्राइम नंबर में इनको कन्वर्ट करने के बाद इन दिस डिनोमिनेटर यू कैन सी वी आर हैविंग 2 raised to power n, here we are having 5 raised to power n, here we are having 5 raised to power n. बेटा हमारे पास ना जब भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होती हैं तो उसके डिनोमिनेटर की एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power समथिंग और 5 raised to power समथिंग और 2 multiplied by 5 raised to power समथिंग। पर उससे पहले एक चीज हमेशा ही याद रखनी है, नथिंग शुड बी कॉमन अमंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी प्राइम नंबर, शुड बी को प्राइम, बोथ शुड बी को प्राइम, राइट? ओनली वन शुड बी द कॉमन फैक्टर, लीस्ट फ्रैक्शन में लिखा होना चाहिए। उसके बाद ही आप इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे और आप चेक करोगे कि जितने भी रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होती है ना, उसके डिनोमिनेटर में हमेशा ही एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स डिनोमिनेटर इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ, एक प्रॉपर्टी क्या होती है वो कि जो p अपॉन q अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n और 5 raised to power m और 2 into 5, 2 raised to power m into 5 raised to power m, 2 raised to power n into 5 raised to power m, हमेशा ही इस फॉर्म में होता है, राइट? चलिए एक दो और क्वेश्चंस करते हैं फिर डिसाइड करते हैं, ठीक है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं, 0.0875, इट कैन बी रिटन एज 875 डिवाइडेड बाय 10,000, दिस कैन बी रिटन एज 875 divided by 10 raised to power 4. Now do its prime factorization. 875 as odd number, not divisible by 2. Is it divisible by 3? No. Now go with, it will go with 5. Definitely it ends with 5. 5 ones are 5. 3 left. 5 sevens are 35. 2 left. 5 fives are 25. Now 5 ones are 5. ठीक है, 5 threes are 15, 5 fives are 25, 5 sevens are 7 ones are. So this can be written as 5 raised to power 3 into 7 divided by 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4. अब इसमें देखो ये 5 raised to power 3 और ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना बच गया 5 raised to power 1. You left with 7 multiplied by 2 raised to power 4, 5 raised to power 1. जब भी आप कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन लेते हो, if you are having, firstly you have to write them in the form of p upon q.
you will definitely get this property in its denominator, that its denominator is always, you can see the in prime factorization of denominators, you will always get even 2 raised to power n or 5 raised to power m और 2 raised to power m into 5 raised to power n. सिर्फ या तो 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या फिर 2 और 5 इकट्ठे होंगे, राइट। पर इसके सिवा आपको इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर, कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं दिखेगा। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की, राइट। अब चेक करते हैं अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस है। कुछ हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की बात करते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं, ठीक है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ले लेते हैं, जैसे 0.333 एंड सो ऑन। वी नो दैट दिस इज 0.3 बार। वी कैन राइट इट डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, that is 3/9, right? 3 1s are 3, 3 3s are 9, this is 1/3। अब देखो यहाँ पे 2 नहीं था, ना ही 5 है, पर यहाँ पे क्या है? 3 है। तो डेफिनेटली अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं होंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही बनेगा, राइट। मीन्स 2 और 5 अकेले होने चाहिए, उसके साथ और कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, राइट। जहाँ अकेला 2 हो, जहाँ अकेला 5 हो, जहाँ फिर 2 और 5 इकट्ठे हो, पर और कोई भी फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, 2.01 बार, राइट। अब इसको कैसे करते हैं? आप दोनों को सेपरेट कर सकते हो, 2 + 0.1 bar is how we can write this one. This is 2 plus 1/99. Now take LCM. This is 9 2s are 18, 8, 1 left, 198 plus 1/99. Here you will get 199/99. अब इसको चेक करके देखो कि इसकी, अगर आप इसको देखो, आप इसको किसी नंबर से काट पा रहे हो? पहले इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है? फर्स्टली यू हैव टू एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन इन द लीस्ट फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ शुड बी द को-प्राइम, उसके बाद ही आप कुछ और डिसाइड करोगे, ठीक है। Here you can see we are having 199/99। अब देखो 199 की अगर हम बात करते हैं तो इज इट अ प्राइम नंबर? अब प्राइम नंबर को चेक करने का यही तरीका है, आप इसके पास वाला कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देख लो। एज यू कैन सी 13 13s are 169, 14 14s are 196। 14 से पहले वाले प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 14 से पहले जो प्राइम नंबर्स आते हैं दैट इज 2 हो गया, 3 5 7, देन 11, देन 13। चेक विथ ऑल दीज। 2 से तो होगा ही नहीं, ऑड नंबर है। 3 से सम नहीं होता, 5 से हो नहीं सकता, 7 से देख लो करके। 7 से करने के लिए आप इसको माइनस करो, इसको करो डबल, इसमें से माइनस करो। 9 + 9 18, 18 1 नो नॉट डिविजिबल बाय 7 11 11 1s are 11, तो 8 बचेगा, 89 बनेगा, नॉट डिविजिबल बाय 11। 13 के टेबल में भी नहीं आता। इट मीन्स दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर, तो ये डिवाइड नहीं होगा। अब इसके डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन चेक कर लो, यू विल गेट 11 × 3 × 3, राइट। तो जितनी भी हमारे पास यहाँ से हमने क्या रिजल्ट, हमारा पूरी ऑब्जर्वेशन में रिजल्ट क्या बना है? इफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग then its denominator is always in the form of P, its denominator Q। if पूरा एक बार अच्छे से क्लीन करके लिखते हैं। अगर रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आती है, if it is terminating, right, then there is a one property of its denominator Q is either in the form of 2 raised to power n or 5 raised to power m or 2 raised to power n into 5 raised to power m, और इसके सिवा इसके डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर नहीं होगा। इफ इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, if it is non-terminating repeating, then
डिनोमिनेटर q, जब हम इसको p अपॉन q की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, और व्हेन p एंड q आर को प्राइम, तो देन q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power n और 5 raised to power m और 2 raised to power n into 5 raised to power m। इसके सिवा यहाँ पे कोई ना कोई और प्राइम फैक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा, तभी इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बनी है। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन। विदाउट परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का यूज नहीं करना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये तो एक पार्ट है। एंड also write the decimal expansions of those which are terminating. Without doing long division, you have to write their decimal expansions also if they are terminating decimal expansions. तो चलिए start करते हैं। Let's check for this first one. 3 upon 3125. Is it terminating decimal expansion or non-terminating? आपने एक रूल कभी भी भूलना नहीं है। Numerator and denominator should be co-prime. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्टली वी विल डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज 3 डिवाइडेड बाय 3125। डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। इट विल गो विथ 5 5 6 30, 1 लेफ्ट, 5 2 10, 2 लेफ्ट, 5 5 25। दिस इज 5 5 1 5। दिस विल गिव्स अस 5 2s are 10, then we are having 5 5s are 125. 125 is 5 raised to power 3. So this is 2 more. It can be written as 5 raised to power 5. Right? But we have 3 upon 5 raised to power 5. चलिए अब आप बताइए, it is terminating decimal expansion or non-terminating decimal expansion? It is all non-terminating repeating. देखो ये ऑलरेडी हमारे पास लीस्ट फ्रैक्शन है, कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर इज 5 raised to power 5, राइट। अब हमें ये तो पता चल गया कि एज इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 raised to power 5, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। उन्होंने बोला है अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आपने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखनी है। तो पहले तो हम क्या बोलेंगे कि यस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन as q is in the form of 5 raised to power 5, therefore terminating decimal expansion. Right? Now you have to write down its decimal expansion. Now how we can write down its decimal expansion? ये थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। अब हमें पता बेटा इसको डेसिमल्स विदाउट डिवीजन करना है ना, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो हमें पता है कि हमें इसका डिनोमिनेटर 10 की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तभी हम सीधे से डेसिमल्स लगा सकते हैं। अब 5 raised to 5 raised to power 5 को 10 या फिर 100 या फिर 1000 की पार्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय, हमें पता है कि एक 5 एक 2 के साथ मिलकर 10 बनाता है, तो यहाँ पे 5 5 है, तो कितने 2 की रिक्वायरमेंट्स है? 5 2 की, क्योंकि एक 5 एक 2 के साथ मिलकर 10 बनाएगा ना, तो हमें 5 2 की रिक्वायरमेंट है। तो हम अपनी मर्जी से तो कुछ ऐड नहीं कर सकते ना। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 2 raised to power 5 के साथ, तो हमें न्यूमिनेटर में भी 2 raised to power 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर तो कितना बन गया हमारे पास? 10 raised to power 5, और न्यूमिनेटर कितना बन गया? दिस इज 2 raised to power 5 is 32, 3 multiply by 32, what you will get है? This is 96 divided by 10 raised to power 5. Now try to convert it into the form of decimals. इसको decimals में convert करने की कोशिश करो। This is 6 9 1 2 3, 5 digits हो गए ना, 0.0. This is its decimal expansion. Right? Hope it is clear. कोई बात नहीं, एक दो questions और करेंगे तो और अच्छे से clear हो जाएगा। Now let's do second part.
सेकेंड पार्ट वॉज 17/8. अब 17/8 है तो इसकी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. 17/2⁻³ कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है. 17 की प्राइम फैक्टराइजेशन हो नहीं सकती बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, राइट. अब देखो ये सिर्फ 2⁻³ की फॉर्म में है. Q is in the form of 2⁻n. तो what does it means? कौन सी है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. अब ये तो हमारे पास आ गया टर्मिनेटिंग. अब फिर से उन्होंने अगर बोला टर्मिनेटिंग है तो आपने इसकी डेसिमल फॉर्म भी लिखनी है. अब यहाँ पे 2⁻³ है तो इसको बनाने के लिए 10 या फिर 100 या फिर 1000 या फिर 10,000 जिसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी, जो बन सकता होगा वही बनाएंगे ना. तो अब यहाँ पे 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स 2 है तो एक 5 के साथ मिलकर 10 बनाएगा. तो कितने 5 की रिक्वायरमेंट्स है? 3 5 की रिक्वायरमेंट है. दिस इज 17/2⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5⁻³ मल्टीप्लाई बाय 5⁻3. So what you will get here? This is 125 multiplied by 17 divided by 1000, right? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और उसके मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे डेसिमल लगा दो. देखो 125 और 17 को मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 17 5s are 85, 5 8 left, 17 2s are 34, 34 plus 8 gives us 42, 2 4 left, 17 1s are 17 plus 4, this is 21 divided by, it gives us 2.125, right. एक दो क्वेश्चन और करते हैं. Now let's do these two parts. This is 64. Do its prime factorization. 8 8s are 64. 8 is 2⁻³ so then this is 2⁻6. 455. Do its prime factorization. 455 is 5 5 5 9s are 5 1s are 13 7s are. This is 5 into 7 into 13. अब देखो बेटा आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 7 भी है 13 भी है और ये न्यूमिनेटर में किसी भी फैक्टर के साथ कैंसिल भी नहीं हो रहे हैं. तो इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन यू विल गेट हियर? यू विल गेट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज Q is in the form of is not in the form of 2⁻n or 5⁻m or 5⁻m or 2⁻n into 5⁻m. Therefore, non-terminating repeating decimal expansion you will get. अब यहाँ पे कभी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग तो आ ही नहीं सकती बेटा. एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q वो रैशनल नंबर है. जहाँ तो वो टर्मिनेट करेगा जहाँ फिर नॉन टर्मिनेट रिपीट करेगा. जो भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना जहाँ पे P और Q दोनों इंटीजर्स हैं तो कभी भी आपके पास रैशनल नंबर आ ही नहीं सकता, राइट. तो इट इज ऑलवेज इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नाउ दिस वन वी कैन डू 7 multiplied by 11. This is 21 into 10. 21 is 3 into 7 into 2 into 5, right. So 7 can cancel with this 7. 11/3 into 2 into 5. अब यहाँ पे 2 भी है यहाँ पे 5 भी है बट 3 एक्स्ट्रा है जिसको हम कैंसिल भी नहीं कर पा रहे हैं. तो इट मीन्स अगेन it is not in the form of Q is not in the form of 2⁻m into 5⁻n. Therefore, non-terminating repeating. Is it clear? अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं जो बोर्ड के पेपर्स में आए हुए हैं. चलिए अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं. वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. क्वेश्चन इज has the rational number this one 441
upon 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 2. This is 7 raised to power 2. A terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. And if terminating, then it will terminate after how many decimal places. फिर पेपर में ना ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं कि अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, मींस उसके डेसिमल प्लेस में कितने डिजिट्स आएंगे, 1 2 3 कितने डिजिट्स आएंगे, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले तो चेक करते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है. टर्मिनेटिंग होगा तभी हम इस स्टेप पे मूव करेंगे. अब कुछ बच्चे आप लोग बताइए बेटा, आप इस क्वेश्चन को में बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा. डिनोमिनेटर वी हैव 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 2. अब कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, बिना देखे ही बोल देंगे दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो 7 भी है क्यू में, डिनोमिनेटर में तो 7 भी है एक एक्स्ट्रा फैक्टर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग ही होगा. नो, पहले हमने P अपॉन Q को लीस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. P एंड Q बोथ शुड बी को प्राइम. तो एक बार हम पहले 441 की डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं क्या बनती है ये. 441 इज इट डिविजिबल बाय 3? यस. 3 1s are 3, 1 left, 3 4s are 12, 2 left, 3 7s are again divisible by 3, 3 4s are 12, 2 left, 3 9s are 27. This is 7 into 7. So its prime factorization is 3 raised to power 2 multiplied by 7 raised to power 2. This is 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7 into 7 raised to power 2. ये तो कैंसिल हो गया, 7 तो कट गया ना. अब क्या बच गया हमारे पास डिनोमिनेटर में 3 अपॉन 2. दिस इज 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7. अब यहाँ पे 2 और 5 के सिवा और कोई भी फैक्टर नहीं है, तो व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज? इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एज Q is in the form of 2 raised to power m multiplied by 5 raised to power n. So it is terminating. अब उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताओ क्या होगी, उन्होंने क्या पूछा है कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा. बेटा इसके लिए आप खुद देखो आपको क्या चाहिए होता है. जहाँ तो 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3 बनना चाहिए ना डिनोमिनेटर में, या 10 होना चाहिए, या 100 होना चाहिए, या 1000 होना चाहिए, या 10,000 होना चाहिए. अब यहाँ पे देखो 2 raised to power 2 है और 5 raised to power 7 है, राइट. इसका मतलब एक 5 एक 2 के साथ मिलके 0 बनाएगा, पर यहाँ पे 5 7 है और 2 कितने हैं, 2 ही है. तो कितने 2 की और नीड पड़ेगी हमें, 5 2 की और नीड पड़ेगी, तभी तो वो 7 बनाएगा ना. तो इसका मतलब हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 के साथ 1 के साथ कितनी जीरोस लगेंगी, 7 जीरोस लगेंगी ना. देखो बेटा यहाँ पे है हमारे पास, फिर से लिख लेते हैं 3 raised to power 2. दिस इज 2 raised to power 2 into 5 raised to power 7. अब जब हमने इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसके डिनोमिनेटर्स हमेशा 10, 100, 1000, 10,000 इसी तरह चलते हैं. 10 raised to power समथिंग. तो 2 और 5 को 10 बनाने के लिए एक 5 एक 2 के साथ मिलकर 10 बनाता है. यहाँ पे 7 5s हैं और 2 कितने हैं, सिर्फ 2 ही हैं. तो इसका मतलब हमें यहाँ पे कितने 2 की और नीड पड़ रही है, 5 2 की और नीड पड़ रही है. तो यहाँ पे जब 7 2 हो जाएंगे और 7 5 हो जाएंगे, राइट, तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितना बनेगा, 10 raised to power 7 बनेगा, है ना. मीन्स आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, आपने देख लेना है 5 और 2 में से किसकी पावर बड़ी है. जिसकी पावर बड़ी है उतने ही डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा. जैसे 5 की पावर 7 है तो डेफिनेटली ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 7 डेसिमल प्लेसेस. इट विल टर्मिनेट आफ्टर 7 decimal places. Right? Hope it is clear. Got it? चलिए एक छोटा सा देख लो इधर. अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होता 13 divided by 2 raised to power
9 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू पावर 1, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता है? इट विल टर्मिनेट आफ्टर 9 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 2 की पावर 9 बड़ा है 5 की पावर 1 से, तो ये कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करता? 9 डेसिमल प्लेसेस के बाद। होप इट इज क्लियर। थैंक यू।